سامنے مسائل کا انبار لگا ہوا ہے. آج ہمارے سامنے جو حالات کھڑے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کے حضور سجدے کرنا چھوڑ دیا ہے. آج اسی گاؤں میں 90% لوگ وہ ہوں گے کہ جو صرف جمعہ پڑھتے, 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے. اور معاف کریے گا, اسی مجمع میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے 5-6 مہینے سے فجر کی نماز ایک بار بھی نہیں پڑھی ہوگی. معاف کریے گا مجھے. جبکہ کفر اور شرک کے درمیان سب سے بڑا فرق نماز کا ہے. بے شک مشرک کی پہچان یہ ہے کہ وہ در بدر جھکتا ہے, مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ صرف خدا کے لیے جھکتا ہے. سبحان اللہ. بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگو, جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو, اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ. مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا لے کر ماریے, بلکہ مارنے کا یہ مطلب ہے آپ اسے ڈانٹ دیجئے, تنبیہ کر دیجئے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو تماچا ماریے یا اس کو ڈنڈے سے ماریے. جبکہ یہ ہمارے علماء جانتے ہیں کہ 10 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہوتی, مگر اتنی تاکید کے ساتھ میرے نبی نے اس لیے فرمایا تاکہ جب بچپن ہی سے نماز کا عادی رہے گا تو بالغ ہونے کے بعد نماز چھوڑنے کا خیال نہ کر سکے گا. بے شک حق ہے ماشاء. پھر سنیجیے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو, اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ, اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے سونے کے بستر الگ الگ کر دو. یعنی 10 سال عمر ہونے کے بعد کوئی بھی بہن اپنے بھائی کے ساتھ نہ سوئے, کوئی بھی بھائی اپنی بہن کے ساتھ نہ سوئے, بھائی بھی ایک بستر پر ایک ساتھ نہ سوئیں. بچوں کی عمر 10 سال ہو جائے تو ان کے سونے کے بستر الگ الگ کر دو. بے شک. اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. بخاری سب سے بڑی کتاب قرآن مجید, اور قرآن کے بعد جس کتاب کا سب سے بڑا مقام ہے وہ ہے حدیث کی کتاب بخاری شریف, جس کو پڑھے بغیر کسی بھی عالم کو عالم ہونے کی سند نہیں دی جاتی. بخاری شریف پڑھنے کے بعد ہی پورے مولانا ہوتے ہیں. اسی بخاری کی حدیث ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ اذان پڑھ دے. پہلے فرمایا کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ اذان پڑھ دے, اور جب اذان ہو جائے حضور فرماتے ہیں پھر میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ لکڑیوں کو اکٹھا کر دے, اور جب لکڑیاں اکٹھا ہو جائیں تب میرے نبی فرماتے ہیں پھر میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ لکڑیوں میں آگ لگا دے, اور جب لکڑیوں میں آگ لگ جائے پھر حضور فرماتے ہیں تب میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ امامت کرے, نماز پڑھائے. اور جب سب لوگ نماز پڑھنے لگے, امام صاحب نماز پڑھانے لگے, حضور فرماتے ہیں پھر میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ ان لکڑیوں کو اٹھائے اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا ڈالے جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوئے ہیں. اما صحابہ نماز نہیں چھوڑتے تھے, مگر یہ اس کے لیے فرما رہے میرے نبی جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے تھے. سمجھ گئے؟ ان کے لیے فرماتے ہیں میرا یہ دل کرتا ہے کہ بے نمازیوں کے گھروں میں آگ لگا ڈالو. ایسے ناراض ہیں میرے نبی بے نمازیوں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح صبح بازار کی طرف جاتا ہے تو وہ شیطان کا جھنڈا لے کر کے جاتا ہے,
और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो ईमान का झंडा लेकर के जाता है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब तुम्हें यह फैसला करना है कि सुबह उठने के बाद शैतान का झंडा उठाना है या फिर अपने नबी के दीन का झंडा उठाना है। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था कि ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए, हुजूर फरमाते हैं उसका निकाह करने में देर मत करना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इन 3 कामों में कभी देर मत करना। हजरात, ये हमारी मां बहनें भी बैठी हैं। ये बेवा की बात मैंने कही। हुजूर फरमाते हैं बेवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। आज भी अपने मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर नजर पड़ जाती है तो वो कहते हैं हमारा आज का दिन मनहूस हो गया, खराब हो गया। एक विधवा पर हमारी नजर पड़ गई, जबकि भाई अगर मरना ही मनहूसियत है तो वो शख्स मनहूस होना चाहिए जो मरा है। इस बेचारी का क्या कसूर है? मौलवी साहब, अब मैं सुबह चला रही हूं मोबाइल, उस बेचारी का कसूर है ना भाई? उसका तो कोई कसूर नहीं है। मगर आज भी अपने मुल्क में करोड़ों लोग ऐसे हैं कि सुबह सुबह किसी विधवा पर नजर पड़ जाए तो विधवा को मनहूस समझते हैं। और आप और हमारे अंदर भी तो ये आदत है, अगर कहीं मोटरसाइकिल से गुजर जा रहे हैं और बिल्ली गुजर गई तो मियां खड़े हैं, क्यों? पहले कोई और गुजर जाए। अम्मा ये आदतें आपके अंदर कहां से आ गई? जिस कौम के पास बिस्मिल्लाह जैसा हथियार हो, बेशक सुभान अल्लाह, उन्हें इस तरह की लायानी बातों में नहीं आना चाहिए। बेशक जब भी जिंदगी में आपको खतरे लगे, परेशानी आए, अल्लाह का नाम लीजिए और अपनी मंजिल की तरफ चल दीजिए। यही इस्लाम है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मुशरिकों जैसी आदतें अपनाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी सुभान। ये वहमी बातें अपनाने की जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाह पढ़िए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़िए, चलिए मंजिल की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से तो पूरा शैतान भाग जाता है। बिल्ली क्या चीज है? हक है बेशक। तवज्जो चाहूंगा। मगर मेरी बहन और आपके जरिए से अपने मां बहनों तक कहना चाहता हूं, तो ये दुनिया ऐसी है कि इसकी जबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है। मगर तारीख इंसानियत में वो तन्हा मेरे नबी की जात ऐसी है, जो जबान पर है वही दिल में है और जो दिल में है वही जबान पर है। तारीख बताती है कि 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी और 40 साल की बेवा है हजरत खदीजतुल कुबरा। और मेरा नबी पहला निकाह किसी कुंवारी से नहीं करता, बल्कि पहला निकाह एक बेवा से करके कयामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी 1 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। यह भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन ये मुसलमान कुर्बान हो जा अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले तुम्हारे नबी मदीने के दारुल हुकूमत से दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सीरते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हमारे घरों में
आज हमारे घरों में जो बेपर्दगी हो रही है, शादी ब्याह में देखो तो औरतें इतना मेकअप बनाओ श्रृंगार करती हैं। 50-50 साल की औरतें, 60 साल की औरतें, जिनके पोते भी हैं, नवासे भी हैं, पोतियां भी हैं, नवासी हैं, इतना श्रृंगार मेकअप करके, बनाओ श्रृंगार करके, ऐसी इस्लामी वकार की हया इस्लामी वकार, इस्लामी हया की ऐसी धज्जियां उड़ाती हैं कि उसका पोता भी देख के शर्मिंदा हो जाता है, या अल्लाह मेरी दादी को हो क्या गया है। किसी की मानने के लिए तैयार नहीं, न अपने शोहर की मानेंगी, न बेटों की मानेंगी, और इमाम साहब की तो क्या मानेंगी। ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं किसी का। अगर शादी हो रही है तो अल्लाह जाने कौन सी रस्में निकाल रखी हैं। अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। 3 दिन पहले से गाना बजाना शुरू, सेहरे के नाम पर औरतों का सज धज कर आना, इस्लामी वकार और हया और धज्जियां उड़ाना। बारात दुल्हन आ गई, फिर गाना बजाना शुरू। और अजीब हाल है हमारा, अगर इमाम साहब मस्जिद से कहें कि बहनों पर्दा किया करो तो ये कहते हैं, और अगर इमाम साहब कहते हैं कि जिसकी बारात डीजे से आएगी मैं उसका निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, ये डीजे मत मंगवाया करो, तो ये बिगड़े हुए सेठ, उल्टी खोपड़ी के सेठ, ये कहते हैं ये 5000 मौलवी हमें समझाएगा दीन, इसकी हैसियत क्या है ना, ये समझाएगा हमें। ऐसे मौलवी तो हमारे जेब में रखे रहते हैं। अरे बिगड़े हुए सेठों, मौलवी कोई कुर्ते पजामे का नाम नहीं है। अल्लाह की कसम 2, 4, 5 कुर्ते पजामे तो खरीद सकते हैं, मगर किसी भी बिगड़े हुए सेठ की पिछली 7 नस्लें और अगली आने वाली 7 नस्लें मिलकर के भी किसी आलिम रब्बानी की जबान को नहीं खरीद सकती। हम दूसरी कौमों में देखते हैं, दूसरी कौमों में देखते हैं कि अपने बाबाओं को उठाए उठाए फिर रहे हैं। कितना भी बड़ा सेठ होगा, जब बाबा को देखेगा वहीं से गिर जाएगा। और ये हमारी कौम अपने आलिमों के पैर पकड़कर खींचने में पीछे लगी है। बेशक इमाम साहब को, हमारे एक साहब हमें मिले, रमजान शरीफ का मौका था। बेटे मोबाइल बंद कर लो, मोबाइल में बहुत तकरीरें सुन लेना, बंद कर लो बेटे, जेब में रख लो, है ना, हाँ ऐसे सुन लो, अल्लाह हिदायत नसीब करे, आमीन। एक साहब हमारे गांव में मिले रमजान शरीफ में, मैं भी घर पर ही था। तो मैंने देखा कि फजर की नमाज के बाद मैं खड़ा हुआ था मस्जिद के आगे, वो आ गए, उनसे मेरी मुलाकात हो गई। तो मैंने कहा क्या बात चाचा, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। बोले नहीं आप नहीं दिखाई दिए। मैंने कहा मैं तो पूरे रमजान से यही हूं, आपसे मुलाकात नहीं। बोले नहीं मैं भी तो गांव में रहता हूं। मैं कहा चाचा अजीब मामला है, रोजाना 5 टाइम नमाज तो मस्जिद में पढ़ता हूं, मुलाकात नहीं। बोले हाँ वो मैं जमात से नमाज नहीं पढ़ता हूं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले नहीं कुछ हुआ है। मैंने कहा नहीं चाचा आप बताएंगे जरूर हुआ क्या है। बोले वो इमाम साहब से मेरी बनती नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं बन रही आपकी इमाम साहब से? मैंने कहा अगर इमाम साहब में कोई शरई कमी है तो फिर हमारी भी नमाज नहीं होगी, आप उसको बताएं। तो या तो उनसे कहा जाए कि शरई कमी दूर करें, है ना, और अगर शरई कमी नहीं है तो फिर आप में कमी है तो आप अपनी कमी पर गौर करें। तो बोले नहीं मेरा उनसे दिल ही नहीं मिल रहा है। मैंने कहा भाई क्यों नहीं मिल रहा आपका दिल, क्या वजह हो गई, कोई बात हो मुझे बताइए, मैं कहता हूं इमाम साहब से। तो मुझसे कहते हैं एक दिन मैं वहां खड़ा था, इमाम साहब ने मुझे सलाम नहीं किया। तो मैंने कहा आपके इमाम हैं, आप ही सलाम कर लेते। क्या इमाम का ही ठेका है कि इमाम ही सलाम करेंगे सबको? शर्म की बात है कि हमारा बेटा शराब पी रहा है तब भी हमारा उससे दिल मेल खा रहा है, हमारा बेटा जुआ खेल रहा है तब भी दिल मेल खा रहा है। और जो इमाम हमें अच्छे रास्ते बताने के लिए हमारे उलमाए हैं, जो हमें बुराइयों से बचाना चाहते हैं, अच्छाइयों के रास्ते पर चलाना चाहते हैं, आज हम ही उनके सबसे बड़े दुश्मन। रमजान जैसे महीने में मैंने कहा जमात छोड़ के आप तन्हा नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर। इस महीने में कितनी फजीलतें हैं। तो सुन्नियों का अजीब हाल है, इमाम साहब फातिहा न देने गए तो इमामत खत्म,
हम 8 दिन नहीं टिकने देंगे इमाम साहब को। तुम्हारी मां ने दूध पिलाया हो तो प्रधानमंत्री को हटाओ, तुम इतने बड़े ताकतवर और बहादुर सेठ हो तो हटाओ मुख्यमंत्री को। मगर तुम्हारी औकात जानते हैं कि तुम इमाम बाहर का आदमी है, गरीब आदमी है, इसलिए पूरी कौम सताने पे लगी हुई है। अगर कोई शरई कमी हो तो अपने इलाके के लोगों से राब्ता करके उन इमाम साहब की बात करवाइए, शरई कमी दूर करवाइए। वरना हमारा यह अखलाकी फरीजा बनता है, 6 से 7 हजार रुपए, 8 हजार रुपए में हमारे इमाम 24 घंटा अपना देते हैं, दीन के लिए वक्फ हैं। अगर ये दीन की खिदमत नहीं करेंगे तो फिर इस्लाम निहायत कमजोर हो जाएगा। बेशक। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आप गाजी के जिले में रहते हैं कि गांव हर गांव में हाफिज मौलाना हैं, वरना हमने ऐसे ऐसे जिले भी देखे हैं कि पूरे जिले में एक भी हाफिज नहीं है आज भी। बेशक। समझ गए? हाँ, इसलिए मौलाना लोगों को देखकर ये मत समझो ये कितने नहीं, सलाम करो, उनका अदब करो, कुछ कह भी रहे हैं तो नजरअंदाज करो। कोई बात आपके मिजाज के खिलाफ है, आप ठंडे दिमाग से समझाइए, यह हमारा अखलाकी फर्ज बनता है ना। हाँ। अब 11वीं शरीफ के दिन इमाम साहब की दावत 20 घर में होती है, तो क्या भाई 20 घर इमाम साहब जाएंगे? इमाम साहब गौसे पाक तो है नहीं कि 70 घर चले जाएंगे। क्यों भाई? फातिहा ना देने गए तो इमामत की छुट्टी, यानी इमामतें जितनी छुट्टी हैं सुन्नियों में 80% इमामतें फातिहा ना देने की वजह से छुट्टी हैं। बेशक सही है। क्यों भाई? आप मुसलमान नहीं है, आपको 3 कुल याद नहीं है। अगर त्योहार का दिन है पूरा गांव घर घर फातिहा पढ़वाएगा, ठीक है, लेकिन वो भी इंसान है ना भाई। मुसलमान तो हम भी है ना, हम भी फातिहा पढ़ सकते हैं। और अगर फातिहा पढ़ने के लायक 3 कुल हुवल्लाह भी याद नहीं है तो फिर मुसलमान किस बात के हो भाई? सही। अल्लाह से डरो मेरे भाई, अपने दीन पर मजबूती से अमल पैरा हो जाओ। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा, मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी की कब शाम हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। आपने मुझ जैसे नौजवान, आप जैसे नौजवान बहुत हैं जमीन पर। पहले रोड कच्चे थे, एक्सीडेंट होता था, कोई एक आदमी मर जाता था। आज रोड शानदार है, पूरी गाड़ी पलटी, पूरा खानदान खत्म। मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीज, कब सांसें थम जाएं कोई भरोसा नहीं, कब बीमारी पकड़ ले कोई भरोसा नहीं। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह से डरो और इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, झूठ ना बोला करो। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुसलमान एक बार झूठ बोलता है तो उसके मुंह से झूठ बोलते वक्त इतनी बदबू आती है कि रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। फिर वो आदमी झूठ बोलता है, फिर वो फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। इसलिए दिन ब दिन झूठ मत बोला करो मेरे भाई। अल्लाह ने जितनी रोजी, जैसे मौत इंसान को तलाशती है ऐसे ये रिस्क भी इंसान को तलाशता है। इसलिए कोशिश करो, आज के जलसे में आए हो तो सिर्फ वाह वाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छा जलसा रहा ये कहने से काम नहीं चलेगा। हम सबको चाहिए कि यहां बैठ करके अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें और अपने अमाल पर गौर करें और 5 वक्त की नमाज की आदतें डाल लें। इंशाल्लाह अमल होगा ना? क्यों भाई? नमाज पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह जरूर। खुद भी तबलीग कीजिए, दूसरों को भी, खुद भी अच्छे काम कीजिए, दूसरों को भी अच्छे काम की तरगीब दीजिए, खुद भी बुराइयों से बचिए, दूसरों को भी बचाइए। और 100 बातों की एक बात कह रहा हूं, हमारे घरों की औरतें जो निहायत बेपर्दा रहने की आदी हो गई हैं, कभी बाजार जा रही हैं, कभी मजार जा रही हैं। अगर घर के दरवाजे पर मस्जिद है तो इस्लाम औरतों को यह इजाजत नहीं देता कि मस्जिद में जाकर के जमात से नमाज पढ़ें, जबकि घर के दरवाजे पर मस्जिद है। जो इस्लाम घर के दरवाजे पर मस्जिद में जाने की औरतों को इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम इन्हें बाजारों में घूमने की इजाजत कैसे दे सकता है?
है ना, कभी इस मजार की मन्नत, कभी उस मजार की मन्नत, कभी बहराइच शरीफ जा रही हैं, कभी देवा शरीफ, यानी बाज औरतें तो मन्नतों में ही। मेरी बहन, मन्नतें ऐसी मांगा करो कि जिन्हें पूरी कर सके। और याद रहे, पिछले 3 साल से अपने मुल्क में हिजाब का मैटर चल रहा है जी। हिजाब 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 किसे कहते हैं? हिजाब, हिजाब ये एक अरबी लफ्ज है जिसका उर्दू में माना होता है पर्दा, है ना। लेकिन आजकल हिजाब उस छोटे से कपड़े को कहते हैं कि जिसे हमारी कौम की नौजवान बेटियां अपने सरों पर रख लेती हैं, सर छुप जाता है, चेहरा खुला रहता है, उसे हिजाब कहते हैं। लेकिन वो शरई हिजाब नहीं है ना। मगर कर्नाटक में लोगों को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ और हमारी कुछ बेटियां कर्नाटक के स्कूलों में पढ़ने जाया करती थी, तो वहां शरपसंदों ने फसाद किया और नतीजा यहां तक पहुंचा कि स्कूलों के गेट पर बोर्ड लगा दिए गए कि हमारे यहां पर्दे वाली बच्ची नहीं पढ़ सकती। फसाद हुआ, बात कर्नाटक के हाई कोर्ट तक पहुंची और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। और शुरू का जब ये हिजाब की बात चली थी तो 1 साल तो ऐसा गुजरा था कि किसी भी दिन का कोई भी अखबार ऐसा नहीं था कि जिस अखबार में लफ्ज हिजाब न पाया जाता हो। जिधर टीवियों में देखो हिजाब, अखबारों में देखो हिजाब, सोशल मीडिया पर देखो तो हिजाब हिजाब। और ये हमारी गोदी मीडिया दुनिया को बता रही थी कि मुसलमानों की औरतों को पर्दा करने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं दिया है, हदीस में इसका हुक्म कहीं नहीं है। बस ये मुसलमानों का आपसी कल्चर है, आपसी तहजीब है, ये दीन नहीं है। ये हमारी मीडिया दुनिया को बता रही थी। हजरात, जिस वक्त ये हिजाब का मैटर बिल्कुल गरमाया हुआ था, उसी वक्त में कर्नाटक गया हुआ था। मैंने कर्नाटक में हिजाब के मौजू पर 1.5 घंटा तकरीर करी, कुरान और हदीस की रोशनी में। सुभान अल्लाह, सुभान अहले अल्लाह। कर्नाटक ने दुआओं से नवाजा। अब ये सुन लीजिएगा, आखिर में, तकरीर के आखिर में मैंने उनसे कहा था कि मेरे भाई, इस नाजुक वक्त में शरीयत के इस मजबूत पहलू पर तुम मजबूती से जमे रहना, मायूस ना होना, खुदा की रहमत तुम्हारा साथ देगी, सुभान अल्लाह की रहमत तुम्हारा साथ देगी, मायूस ना होना। यह कहकर मैं चलाया। इस साल जनवरी सन 2024 में मैं फिर वहां गया तो वहां विधानसभा इलेक्शन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, हालात बदले और जो कर्नाटक का मंत्री हिजाब के मैटर में सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था, अल्लाह ने उसे इतना जलील फरमा दिया कि पूरा कर्नाटक में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। बस यही तो आपसे कह रहा हूं, मेरी कौम मायूस न हो, फिक्र न कर, ये बादल है, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह कयामत तक जारी रहेगा। मेरी कौम, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इन औरतों को मजारों पर जाने से रोकिए। बहुत सही। मैं कोई वहाबी नहीं हूं कि कभी कह दो कि 24 नंबर मौलवी आया था। मैं पक्का बरेलवी हूं, आला हजरत को मानता हूं, मुफ्ती आजम हिंद का चाहने वाला हूं, ताजुश शरिया का मुरीद हूं। सुभान अल्लाह। मसला के आला हजरत यह है कि औरतों का मजार शरीफ पर जाना जायज नहीं है। फितरों का दौर है, इंतिशार का दौर है। सिर्फ एक मजार ऐसा है जहां औरत जब चाहे तब जा सकती है, वो है मेरे नबी का मजार। सुभान अल्लाह, सुभान। उस मजार के सिवा दुनिया में कोई मजार ऐसा नहीं है कि जहां औरत कहीं नहीं जहां जा सकती हो। कोई मजार नहीं है, कहीं इजाजत नहीं। हमें वलियों के इमाम है गौसे पाक और उनका मजार शरीफ है बगदाद शरीफ में। हम उनकी 11वीं की मन्नत मांगते हैं तो बगदाद शरीफ के जाते हैं क्या सब लोग? नहीं जा पाते। तो इन औरतों से कहूंगा, जब सारे अल्लाह वाले जिंदा हैं, तुम्हारी बातों को तुम्हारे घरों से ही सुनते हैं, इसलिए अपने घरों में रहो,
फरमा बरदारी करो। ये कौन सा इस्लाम है कि औरत चली है अजमेर शरीफ, घर में शोहर बीमार है, एक एक बस जा रही है अजमेर शरीफ, 40 मर्द बैठे हैं, 20 औरतें बैठी हैं, 30 मर्द बैठे हैं, 40 औरतें बैठी हैं। कौन इस्लाम में कहां इसकी इजाजत है? इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो, अपने घरों की औरतों को मजार शरीफ पर ना भेजो। अब मेरी बहनें सोचती होंगी मौलाना साहब एक बात बताइए, अगर हम मन्नत पूरी नहीं करेंगी, अगर हम अजमेर शरीफ नहीं जाएंगी तो ख्वाजा गरीब नवाज कैसे खुश होंगे, बहराइच के गाजी खुश कैसे होंगे? तो है मेरी बहन, इस तरह के चक्कर लगाने से ये अल्लाह वाले तुझसे कभी खुश नहीं होंगे। अगर इन्हें खुश करना चाहती है तो ऐसा कर, अपने ही घर में रह, शोहर की फर्मा बरदारी कर, बच्चों की सही तरबियत कर, मुसल्ला उठा ले, इबादत कर, फिर देख मेरी बहन तेरे सजदे होंगे मुर्चाबा की सरजमीन पर, मेरा गाजी खुश होगा, बहराइच की जमीन पर मेरी बहन तेरी इबादत होगी, इस सरजमीन पे मेरा ख्वाजा खुश होगा, अजमेर शरीफ की सरजमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अपने घरों की औरतों को मजार शरीफ ना भेजा करो। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी जी, बेशक बेशक जी। अभी 2-3 महीने पहले यहीं जिला बहराइची में किसी गांव में कव्वाली थी, हमारी भी तारीख उन्होंने ली और उसके बाद मुझे बताया भी नहीं, उन्होंने बैनर छपवा दिया। तो बैनर में हमारे नाम छोटे छोटे और कव्वाल और कव्वाला की बड़ी बड़ी तस्वीरें। समझ गए? जिस दिन मुझे जाने था उसी वक्त ईशा के टाइम फोन आया कि हजरत, एक दूसरे साहब का फोन आया कि हजरत आप कहीं जलसे में जाएंगे। मैंने कहा जी। तो बोले हजरत जी जलसे में आप आ रहे हैं, कल को उसी वही कमेटी है, उसी उर्स का प्रोग्राम है, कल को वहां कव्वाल और कव्वाला का मुकाबला होगा। मैंने उठाया फोन और जलसे वालों को फोन किया। बोले हजरत किसने बताया आपको, उसका फोन नंबर दो। मैंने कहा ये बताओ कि है कि नहीं। बोले हाँ हजरत है। तो मगर बोले हजरत वो वहां होगा, जलसा कहीं और है। मैंने कहा वही कमेटी कर रही है ना। मैंने कहा सुन लीजिए मैं नहीं आ पाऊंगा, आपको बताना चाहिए था मुझे। तो बोले हजरत कुछ पैसे बढ़ा देंगे। मैंने कहा अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मैं दाल रोटी खा सकता हूं आराम से, जी जी, है ना। मैंने कहा 1 लाख रुपया दोगे तब भी नहीं आऊंगा, आपको एक जितना भी दोगे। मैंने मना कर दिया, नहीं गया। मैं नहीं गया, देखा तो 4-5 मौलवी पहुंच गए वहां। क्यों भाई? हमारी ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह वालों के आस्थानों पर, वलियों के आस्थानों पर मुसलमान मुजरा करवाएगा, और वो कव्वाली, और वो भी लड़की और लड़के की ये काम तुम अपने घर में क्यों नहीं करवाते बेशर्मो? तुम अल्लाह वालों के आस्थानों, अल्लाह वालों की रूह को तकलीफ देते हो। आला हजरत से किसी ने पूछा हुजूर ये मज़ारों पर जो गलत काम होते हैं, क्या इन गलत कामों की वजह से अल्लाह वालों को तकलीफ होती है? तो आला हजरत फरमाते हैं हाँ मियां तकलीफ ही तो होती है, जब ही तो अल्लाह वालों ने नजर करम करना कम कर दिया है, वरना जो फैज मज़ारों से पहले मिलता था आला हजरत फरमाते वो अब कहां मिलता है। ये 100 साल पहले आला हजरत ने फरमाया था, अब कहां मिलता, और 100 साल के बाद का क्या हाल है आपसे पोशीदा नहीं है। इसलिए आपके इलाके में कहीं भी कव्वाली हो, लड़की लड़का की मुकाबलेबाजी हो, आप खुद भी मत कराइए, कहीं हो तो जाइए भी मत, क्योंकि उस महफिल पर रहमत नहीं बल्कि अल्लाह का गजब और लानत बरसती है। एक बेहतर मुसलमान होने की जिम्मेदारी आप भी अदा कीजिए। सिर्फ उलमा की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो मुआशरे को बेहतर करने की कोशिश करें, हर मुसलमान की अखलाकी जिम्मेदारी है कि अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों को बुराइयों से रोके और अच्छाइयों के रास्ते पर चला। सुभान अल्लाह, बेशक। क्यों भाई बात समझ में आ रही है ना? जी जी। अब हम अपनी तकरीर खत्म कर रहे हैं। आखिर में हाँ आपसे यह अर्ज कर रहा हूं जी, थोड़ी देर को बैठ करो। आखिर में आपसे यह गुजारिश कर रहा हूं कि अपने घरों की औरतों को आप मजार शरीफ ना भेजा कीजिए, ठीक है?
बिना जरूरत मार्केट में ना भेजा कीजिए, समझाइए, है ना। गांव के लोगों को समझाना आसान होता है, मगर शहर के सेठों को समझाना साहब बड़ा मुश्किल है। वो कहते हैं ये मदरसे में पढ़ने वाले, ज़कात खाने वाले गरीबों, ये समझ पाएंगे, ऐसे करते हैं। उन्हें इस्लाम कब याद आता है? बस जुमे के दिन सफेद कपड़े पहन के मस्जिद में पहली सफ में पहुंच गए सेठ जी, ईदगाह में पहली सफ में पहुंच गए, है ना। पहले कपड़े गंदे होते थे, दिल अच्छे होते थे। आज कपड़े अच्छे हैं मगर दिल लोगों के बहुत गंदे हैं। इस गंदगी से बचाओ। आज वो अमीर कहते हैं कि साहब अरे ये मौलवी क्या जाने, हमारी बेटी तो दिल की बड़ी साफ है, हमारी बीवी तो बड़ी अच्छी है। एक साहब बरेली शरीफ में मुझे मिले कि हजरत हमारी बेटी सीधे घर से रक्शे से ऑफिस जाती है और ऑफिस से सीधे घर आती है। मैंने कहा 8 घंटा ये कहां रहती है, कहां जाती है, आप इसकी जिम्मेदारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए हैं। मेरे नबी की 2 बीवियां, मेरे नबी की 2 बीवियां साथ में खड़ी हुई हैं। एक का नाम है हजरत ज़ैनब और दूसरी का नाम है हजरत उम्मे सलमा। एक दाहिनी तरफ, एक बाईं तरफ। इधर देखें, इतने में सामने से एक नाबीना सहाबी आ रहे थे। उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, नाबीना सहाबी थे। जब मेरे नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया पर्दे में हो जाओ, आड़ कर लो, हिजाब कर लो। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, पर्दे में हो जाओ। तो हजरत उम्मे सलमा से रहा ना गया, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो नाबीना है, अब्दुल्ला नाबीना है, ये कोई देख थोड़ी रहे हमें। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उम्मे सलमा अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे हैं तो तुम तो इनको देख रही हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मा यार पैसों के चक्कर में मेरा जहन बढ़ जाता, भैया पैसा ना दो, मेरी तकरीर सुन लो बस। तो मेरे नबी ने फरमाया, अपनी बीवियों से फरमाया, नाबीना से पर्दा करने का हुक्म फरमाया। तो जब मेरा नबी अपनी बीवियों को एक नाबीना से पर्दा करने का हुक्म दे रहा है तो क्या 1400 साल के बाद की बहन बेटियां आंखों वालों से पर्दा नहीं करेगी? बोलो भाई। आज हम देख रहे हैं कि अगर गांव देहात में, शहर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो फिर रोना पीटना शुरू, और ये औरतें ऐसी हाय तौबा मचाती हैं कि अल्लाह की पनाह, बेटी अलग रो रही है, बीवी अलग रही है, रो रही है, बहू अलग रो रही है ना, बहन अलग रो रही है, हाय तौबा मचाई हुई है, सीना खुला हुआ है, बाल खुले हुए हैं। लोग आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक मैयत ये लेटी हुई है और 2-4 बेहयाई के जनाजे ये निकले पड़े हैं, एक इधर पड़ी हुई है, एक इधर पड़ी हुई है, सीना खुला हुआ है, बाल खुले हुए हैं, हया का कोई पता नहीं, पर्दे का कोई पता नहीं। आओ सीखो मेरे नबी की सहाबिया से, नाम है उनका उम्मे खल्लाद। उनका जवान बेटा मेरे नबी के साथ जंग में गया हुआ था और वो वहीं पर शहीद हो गया, वहीं कत्ल कर दिए गए, वहीं पर शहीद हो गए। जब उनकी मां को पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, जंग में कत्ल कर दिया गया है, तो पूरे पर्दे के साथ, पूरे इस्लामी वकार के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची। शिकायत करने नहीं गई थी बल्कि अपने बेटे के ताल्लुक से एक मसला पूछने गई थी। जब सहाबा ने देखा कि उम्मे खल्लाद आई है, शहीद की मां आई है और ऐसी हालत में भी उन्होंने पर्दा कर रखा है, पूरे इस्लामी वकार के साथ आई है, इस्लामी हया के साथ आई है, उनके बेटे के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं और ऐसी हालत में भी उन्होंने पर्दा कर रखा है। तो एक सहाबी बोले उम्मे खल्लाद, तेरे जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो उम्मे खल्लाद कहती है, ए लोगों, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तबरेज आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटा ही तो खोया है, हाय हाय हाय। इज्जत थोड़ी खोई है।
यह है एक सहाबिया का अमल कि जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है और ऐसी हालत में भी उन्होंने बेपर्दगी नहीं की। अल्लाह की पनाह, बचाओ अपने मुआशरे को। अजीब मिजाज हो गया है। 10 मुहर्रम के दिन मेरे आका इमाम हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ शहीद हुए। दुनिया को मालूम है कैसा दिन है मुसलमानों के लिए, मगर उस दिन को भी हम मेले लगाते हैं, ठेले लगाते हैं और हमारी कौम की जवान बेटियां, बहुएं नए नए कपड़े पहन के मेलों का चक्कर लगाती हैं, ठेलों के चक्कर लगाती हैं। क्या इसीलिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी थी कि उनकी शहादत के दिन को यह कौम मेलों ठेलों का दिन बना लेगी? और हम कभी कभी देखते हैं कि मेले हमारे होते हैं और कुछ दूसरी कौमों के गुंडे, बदमाश, लफंगे वो आते हैं और हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं। प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है ना, और अपनी बेटियों की इज्जत के लुटवाने के हम ही जिम्मेदार हैं। इसलिए 10 मुहर्रम के दिन कोई मेला ठेला किसी तरह का ना लगाया करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मदीना शरीफ आए तो देखा यहूदियों को रोजा रखते हैं, तो मेरे नबी ने यहूदियों से पूछा, तुम क्यों रोजा रखते हो उस दिन? तो यहूदियों ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को अल्लाह ने फिरौन और उसके लश्कर से बचाया था। फिरौन और उसके लश्कर को समंदर में डुबो दिया और हमारे नबी को बचा लिया। उसी शुक्राने में हम 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तुमसे ज्यादा हकदार हम हैं। फिर अल्लाह के नबी ने खुद भी रोजा रखा और अपनी उम्मत को भी 10 मुहर्रम का रोजा रखने का हुक्म फरमाया। अब 10 मुहर्रम को यहूदी भी रखते थे, मुसलमान भी रखते थे। तो मुसलमानों को लगा ये काम तो यहूदियों जैसा हो रहा है, तो मेरे नबी से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस दिन हम भी रोजा रखते हैं, यहूदी भी रोजा रखते हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया, अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो 9 मुहर्रम का भी रोजा जरूर रखूंगा। सुभान अल्लाह। इस हदीस से हमारे उलमा ये बयान फरमाते हैं कि मुहर्रम में 2 रोजे रखना सुन्नत है। या तो 9-10 रखो या 10-11 रखो। और रमजान शरीफ के रोजे के फर्ज होने से पहले मुहर्रम ही के रोजे फर्ज थे, और रमजान शरीफ के रोजों के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी रोजों की फजीलत है तो वो मुहर्रम शरीफ के रोजे हैं। इसलिए मेरे नबी ने यही तो इरशाद फरमाया था, ये लोगों, मैं 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरे अहले बैत। तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहना। जो इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। तो कुरान के साथ ही अहले बैत और अहले बैत के साथ ही कुरान। तो इमाम हुसैन तब खुश होंगे जब हम कुरान की तिलावत करके उनकी रूह को इसाले सवाब करेंगे। इसलिए खुदा का वास्ता देकर आपसे कहता हूं कि 10 मुहर्रम के दिन को मेलों ठेलों का दिन न बनाइए। अपने मुआशरे को बेहतर करिए। गरीबी बर्दाश्त कर लीजिए मगर बेदीनी बर्दाश्त न करिए, है ना। और इंशाअल्लाह फिर कभी आखिरी बात इस सिलसिले की अर्ज कर रहा हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद, नमाज के बाद, अपनी इबादत के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी बात का ताकीद से हुक्म फरमाया है तो वो माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सुभान सोने वालों जागते जागते रहियो। चोरों की रखवाली है, चौकीदार चोर है। चोरों की रखवाली है, सोने वालों। हाँ बस चल ही रहे, चल ही रहे। कोहरा आवत है, हमें भी जाना है, बस चल ही रहे। हाँ अल्लाह सलामत रखे आपको। हाँ कोई बात नहीं, आप तशरीफ ले जाएं। आप कोई आप बुजुर्ग हैं, आप इतने टाइम दिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपकी उम्र में अल्लाह बरकत दे। तो ये आखिरी बात सुन लीजिए, सलातो सलाम पढ़ेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है।
आज हमारे नौजवानों के दरमियान अखलाकी गिरावट बहुत ज्यादा आ गई है। गांव में 5 दोस्त हैं, जब बंबई जा रहे हैं तो दोस्तों से तो मिलके जा रहे हैं, मां बेचारी दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा आखिरी बार आएगा तो मैं उसके सर पे हाथ रखूंगी, मगर ये दोस्तों से मिलके जा रहा है और इसके मां खड़ी खड़ी इंतजार करते रह गई। ये मुंबई पहुंच गया है ना, दोस्तों से सारी बातें हैं मगर बाप की 2 बातें सुनने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि जिसने इस हालत में सुबह की कि उसके मां बाप उससे खुश हैं तो सुबह ही को उसके लिए जन्नत के दोनों दरवाजे खुल जाते हैं। सुभान अल्लाह। और अगर मां बाप में से कोई एक जिंदा है तो एक दरवाजा खुलता है। और जिसने इस हालत में सुबह की कि उसके मां बाप उससे नाराज हैं, नाखुश हैं, तो हुजूर फरमाते हैं सुबह ही को उसके लिए जहन्नम के दोनों दरवाजे खुल जाते हैं। और अगर दोनों में से कोई एक जिंदा है तो एक दरवाजा खुल जाता है। तो एक सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह, अगरचे मां बाप अपने बच्चों पर जुल्म करें तब भी ऐसा है? तो मेरे नबी ने 3 बार फरमाया, वइन सलमा हो वइन सलमा हो वइन सलमा। हाँ 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 हाँ, अगरचे माँ बाप अपने बच्चों पर जुल्म करें, अगरचे माँ बाप अपने बच्चों पर जुल्म करें, अगरचे माँ बाप अपने बच्चों पर जुल्म करें, तब भी ऐसा है कि अगर वो खुश हैं तो सुबह ही को जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, और वो नाराज हैं तो सुबह ही को जहन्नम के दरवाजे खुल जाते हैं। और आप लोगों में कोई हाजी साहब है क्या? कोई हाजी साहब नहीं है? अच्छा, नहीं है। हाँ, आज सोए, चलो कोई बात नहीं, नहीं, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। और मैं पूछूं कि करोड़पति कितने हैं, लखपति कितने हैं? तो 2-4 तो होंगे। जिस तरह से नमाज फर्ज है, इसी तरह से जिंदगी में एक बार हज करना भी फर्ज है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस पर अल्लाह ने हज को फर्ज फरमाया फिर भी वो हज ना करे तो डर इस बात का है कि उसे आखिरी वक्त में कलमा शरीफ भी नसीब ना हो सके। इसलिए अल्लाह हालात बेहतर फरमाए तो शौक बाद में पूरा कर लीजिएगा। पहले अल्लाह ने अच्छा हज फर्ज फरमा दिया है, उसको अदा करें। हजरात,